Hello students, today we have a topic about board pile classification. What is the board piles and what is the type of board piles. This is the topic of the pile foundation, and this is special type of foundation which is required in some different circumstances. So let's start with the board piles. So what is the board piles? Board piles are those which are formed by forming a borehole in the ground and then concreting it, either with the help of casing tube or without casing tube. So the board piles are manufactured either the help of casing tube and without casing tube. Their construction procedure is different than the driven piles. So in the driven piles, we required the heavy equipments, and the piles also have advantage over driven piles that they in the construction of the board piles there was less vibration and noise. And the board piles are three types: first pressure piles, second underaimed piles, and third board compaction piles. So these are the three types of board piles. Let's start with first pressure pipes. These are the formed with the help of casing tube. तो प्रेशर पाइप्स में किसकी ज़रूरत रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल केजिंग ट्यूब, सेकंड बोरिंग ऑगर की रिक्वायरमेंट होती है टू एक्सकेवेटेड सॉइल, एंड थर्ड इज एयर इक्विपमेंट. These piles are especially suited for congested areas where heavy vibration and noise are not permissible, and also heavy pile driven machinery cannot reach. We know that in the pile driven we required heavy machinery to drive the pile in the soil, and it makes heavy noise and vibration. So if the area which is very congested and the noise and heavy vibration does not appropriate for the nearby buildings, so in that case we does not use the pile driven technique. Instead of this we can take the pressure piles foundation. So in this diagram you see that the equipments which is required in the pressure piles. So this is the auger, and this is casing tube, and the auger is center in the casing tube. And after place the concrete, this is the pressure cap which is molded upon the casing tube, and this is air pipe. From this the air is compressed in the casing tube. So construction procedure of pressure pile. In the construction of pressure pile, a 1 to 1.8 meter long steel casing tube is used. इसका डायमीटर कितना होता है? ऑलमोस्ट 400 mm. इसमें डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि अगर हमको 340 mm डायमीटर की पाइल्स बनानी है तो केजिंग ट्यूब की डायमीटर अराउंड 300 मीटर, और 440 मीटर डाय का अगर पाइल्स बनाना है तो 400 mm, और 500 mm डाय का अगर पाइल बनाना है तो 460 mm की डायमीटर ट्यूब केजिंग ट्यूब इस्तेमाल आती हैं. तो सबसे पहले क्या करने है, इस संक जो केजिंग ट्यूब है उसको ग्राउंड के अंदर संक करेंगे विद बोरिंग हॉल, जिसके अंदर क्या होगा? बोरिंग इक्विपमेंट होगा, सच एज ऑगर वर्किंग इनसाइड, एंड इट एक्सकेवेटेड द सॉइल. तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? केजिंग ट्यूब को हम ग्राउंड के अंदर संक करेंगे, और जो ऑगर है वो क्या करेगा? सॉइल को एक्सकेवेट करेगा. आफ्टर द एक्सकेवेशन, एज द बोरिंग टूल रीच द इट्स डिज़ायरेबल डेप्थ, तो जितनी डेप्थ की हमको पाइल फाउंडेशन करनी है उतनी डेप्थ तक जब बोरिंग हो जाएगी तो जो सॉइल है उसको बाहर निकाल लेंगे. सॉइल इज़ टेकन आउट एंड द बोरिंग टूल इज़ टेकन आउट ऑल्सो. आफ्टर बोरिंग, जब बोरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे? फ्रेश कंक्रीट को प्लेस कर देंगे इन द होल फ्रॉम द अपर एंड एंड द केजिंग ट्यूब, एंड द अपर हैंड इज़ क्लोज विद द प्रेशर कैप. जो केजिंग ट्यूब का अपर हैंड है वो किससे क्लोज रहेगा? प्रेशर कैप से. यूसेज है प्रेशर कैप एट द अपर हैंड. आफ्टर दैट द कंप्रेस्ड एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द पाइप ऑफ द प्रेशर कैप. तो कंप्रेस्ड एयर को पास आउट होगी फ्रॉम द प्रेशर कैप. और कंप्रेस्ड एयर किस लिए पास आउट करते हैं हम? कंक्रीट के अंदर
to forcing the concrete down till the compacted pile is cast and then casing tube is taken out. तो कंप्रेशन एयर को हम उसके अंदर पास आउट करते हैं ताकि क्या हो, कंक्रीट सेटल डाउन होती जाए और किसी भी तरह के लम्प्स उसमें नहीं बने और एयर वॉइड्स उसमें ना रहें. तो जब पूरी तरह से जब कंक्रीट पाइल के अंदर प्लेसिंग हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो केजिंग ट्यूब है उसको बाहर निकाल देंगे और इस तरह से हमारी प्रेशर पाइल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यू सी दैट, एंड दिस इज़ द सेकंड स्टेप एंड this is third step. After that the casing tube is out and the concrete pile is formed with less vibration and noise. So this is the pressure pile. Now we are coming to the next classification of board pile, which is under rimmed pile. Under rimmed pile क्या होती है? This pile also is a type of board pile classification. और जो ये अंडर रिम्ड पाइल है उसको डेवलप किसने किया था? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की. तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने इसको डेवलप किया था और उन्होंने इसका पेटेंट भी कराया है. तो अंडर रिम्ड पाइल्स आर बोर्ड कास्ट इन सीतू कॉन्क्रीट. तो ये अंडर रिम्ड पाइल किस टाइप का पाइल है? कास्ट इन सीतू, जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ही कास्ट होती है. और इसमें क्या होता है, हैविंग वन एंड मोर बल्ब्स फॉर्म बाय इनलार्जिंग द बोर होल. तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये है बल्ब. जैसे ये सिंगल अंडर रिम्ड पाइल है तो इसमें अगर एक बल्ब है तो ये कैसी कहलाएगी? सिंगल अंडर रिम्ड पाइल. और एक से ज़्यादा, जैसे इसमें 2 बल्ब है तो क्या होगी? डबल अंडर रिम्ड पाइल. इसमें 3 बल्ब है तो ये क्या हुई? 3 बल्ब अंडर रिम्ड पाइल. तो फॉर द पाइल स्टीम बाय अंडर रिमिंग टूल, दिस पाइल आर यूजफुल वेयर फाउंडेशन रिक्वायर्ड. तो इस तरह की पाइलिंग की फाउंडेशन की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? तो जैसे कुछ कंडीशंस है, व्हेन टू बी टेकन डाउन ए सर्टेन डेप्थ टू अवॉइड द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ सीजनल मॉइस्चर चेंज इन द एक्सपेंसिव सॉइल. तो जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जब सॉइल है वो किस टाइप की सॉइल है? एक्सपेंसिव सॉइल. एक्सपेंसिव सॉइल, तो एक्सपेंसिव सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, मॉइस्चर चेंज होता रहता है सीजनल. तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी फाउंडेशन के ऊपर इल इफेक्ट पड़ते हैं. तो वो इस तरह के अंडर रिम्ड पाइल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पे एक्सपेंसिव सॉइल है. सेकंड इसका क्या होता है? टू रीच ए सर्टेन स्टार्टा. कोई अगर हमको सर्टेन स्टार्टा है जो उस वहाँ तक हमको अपना फाउंडेशन को पहुँचाना है तो वहाँ पे अंडर रिम्ड पाइल का कंस्ट्रक्शन यूज़ आता है. थर्ड वन इज़ द टू ऑब्टेन adequate capacity of downward, upward and lateral loads. And last is to take the foundation below school level and for movement. तो हमको मूवमेंट से हमारी फाउंडेशंस को सेफ रखना है, या तो हमको कुछ एक डिज़ायर्ड स्कूल लेवल तक हमको फाउंडेशन को पहुंचाना होता है, ताकि क्या है, जो मूवमेंट है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव सॉइल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट एक्टिंग ऑन द फाउंडेशन. तो हमको इन मूवमेंट्स को से अपनी फाउंडेशन को सेफ रखना है, तो इसके लिए भी हम अंडर रिम्ड पाइल का इस्तेमाल करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन. You see that when the piles have one bulb, so it's called single under rimmed pile, and when having more than one bulb, so it's called multi under rimmed pile. Generally, the diameter of the bulb is kept 2.5 times of the diameter of the pile. तो अगर पाइल का डाया कितना d है, तो बल्ब का डायमीटर कितना हो जाएगा, अराउंड 2.5 ऑफ d. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. When the expensive soil has a deeper layer, minimum length of पाइल इज़ 3.5 मीटर. तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3.5 मीटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट बिकम नेग्लिजिबल. एंड नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द पाइल कितना होना चाहिए, अराउंड 20 सेंटीमीटर से 37.5 सेंटीमीटर तक. द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए पाइल्स की. अगर 2 पाइल्स है अंडर रिम्ड, तो ये उनके सेंटर पॉइंट है, सेंटर लाइन है, तो एटलीस्ट उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ पाइल. तो जितना पाइल का डायमीटर है उसकी मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स. ये कुछ कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट होती है अंडर रिम्ड पाइल की. नेक्स्ट क्या होता है, एप्लीकेशन कहाँ हो अंडर रिम्ड पाइल की. तो एप्लीकेशन इसकी जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल हो, विच हैज़ प्रॉपर्टी दैट एक्सपेंड एट इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर. तो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है
उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है विद मॉइस्चर और वाटर एंड इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एज इट ड्राइड आउट, और जब ड्राई होती है तो कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस देयर मे बी ए चांस ऑफ क्रैक इन द स्ट्रक्चर। तो इस तरह की सॉइल जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ टाइप की फाउंडेशन में प्रोवाइड करानी चाहिए, ब्लैक अंडर रिम्ड टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट वन इसका एप्लीकेशन क्या होता है, टू अवॉइड डैमेज कैजुअल बाय सॉइल वॉल्यूम चेंज। एंड थर्ड वन, समटाइम व्हेन द फाउंडेशन सॉइल डज नॉट हैव सफिशिएंट बेरिंग कैपेसिटी, तो अंडर रिम्ड पाइल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी। फोर्थ वन, द अंडर रिम्ड पाइल्स आर सुटेबल व्हेन द वाटर लेवल इन सैंडी सॉइल इज हाई। तो जब वाटर टेबल क्या हो, हाई हो, तो वहाँ पे भी हम किस तरह का पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं, और पाइल फाउंडेशन में स्पेसिफिकली अंडर रिम्ड पाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज शुड बी यूज वेयर देयर आर लिफ्टिंग फोर्स एक्टिंग। लिफ्टिंग फोर्स मतलब अपलिफ्टिंग फोर्स बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इन दैट कंडीशन वी ऑल्सो यूज्ड pile foundation and specifically under rimmed pile foundation. So these are the applications where the under rimmed pile foundation can be used. Next, construction procedure. So what is the how the construction of the under rimmed pile is done? So first of all, the hole or the bore for under rimmed pile is done by using auger. तो auger का इस्तेमाल होता है, ये क्यूजिंग ट्यूब है तो ये auger है, तो इसका इस्तेमाल क्या है, सॉइल को एक्सक्यूवेट करना। The spiral auger consists of a special cutter at the bottom to dig the bore. The soil that is dug is taken out by the bucket. You see in this figure where the soil which is taken out by the auger is taken out by bucket. The special cutter are used for making the bulb. The diameter of the bulb can be increased by applying excessive pressure. तो you see in this, ये क्या है, स्पेशल टाइप का कटर है, किसके लिए, टू फॉर्म बल्ब। इस टाइप का जो ये स्ट्रक्चर हुआ इसको क्या कहते हैं, बल्ब। तो इसको कटिंग के लिए स्पेशल टाइप का कटर यूज़ आता है। द ऑगर इज सेट अप ऑन द ट्राईपॉड। तो जो ये ट्राईपॉड है जहाँ से हम देख रहे हैं, तो क्या होता है, ऑगर का इस पर सेटअप होता है एक ट्राईपॉड पे। सो आफ्टर द डिगिंग इज डन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ट्राईपॉड को किस लिए प्लेस करते हैं, ताकि क्या है, जो एक्सकवेशन है वो एकदम वर्टिकली डायरेक्शन में हो सके। एज रीच सफिशिएंट डेप्थ ऑगर इज पुल्ड आउट, द रेनफोर्समेंट इज देन इंसर्टेड इन द हॉल। तो जब एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो भी सॉइल है उसको एक्सकवेट करके बाहर निकाल देंगे, एक्सकवेटेड सॉइल को, उसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, हम हॉल के अंदर रेनफोर्समेंट को प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ मोर देन वन पाइल्स द बीम इज कंस्ट्रक्टेड विद कनेक्ट द पाइल्स एंड मेक द एक्ट लाइक सिंगल वन। अब जब क्या होता है कि पाइल की डेप्थ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो रेनफोर्समेंट केज है, जैसे एक सेट ऑफ रेनफोर्समेंट केज है कुछ डिज़ायरेबल लेंथ तक का, तो वो उसके बाद जब हम दूसरा सेट ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे तो उन दोनों को आपस में इस तरह से टाई करेंगे कि वो क्या करे, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। इसी तरह से हम आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप रेनफोर्समेंट को एक दूसरे से टाई करते रहेंगे, ताकि क्या हो, पूरी पाइल एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करे। देन द वॉल इज़ देन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बीम, और आफ्टर द प्लेसिंग द रेनफोर्समेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बोर होल के अंदर फ्रेशली कंक्रीट को प्लेस करेंगे और इसको क्योरिंग के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये अंडर रिम्ड पाइल का कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें वही फर्स्ट एक्सकवेशन बाय ऑगर, सेकेंड reinforcement, and third fresh concrete place. So this is the construction process of under rimmed pile foundation. The third one is the board compaction piles. तो board compaction piles क्या होती है, board compaction pile क्या होता है, मॉडिफिकेशन है किसका, अंडर रिम्ड पाइल का। अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन में का क्या है, मॉडिफिकेशन टाइप ही क्या है, बोर्ड कंपैक्शन पाइल। दीज पाइल्स आर कास्ट इन सीतू पाइल फाउंडेशन। तो ये भी कास्ट इन सीतू पाइल फाउंडेशन है which combines the advantage of both board and gravel piles. तो जो बोर्ड कंपैक्शन पाइल्स है वो क्या है, एक मॉडिफाइड एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर किसकी एडवांटेज है, दोनों ही टाइप की फाउंडेशन की, जब बोर्ड फाउंडेशन की भी एडवांटेज है और जो ड्राइवन पाइल फाउंडेशन उसकी भी एडवांटेज है।
दिस मेथड ऑफ बोरिंग द पाइल एंड द कॉन्क्रीटिंग द पाइल इज़ द सेम एज दैट फॉर द अंडररिम्ड पाइल। तो बोरिंग का जो प्रोसीजर है पाइल का वो तो बिल्कुल कैसा होता है, अंडररिम्ड पाइल जैसा ही, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है एक्सेप्ट दैट द रेनफोर्समेंट केज इज़ नॉट प्लेस्ड इन द बोर होल बिफोर कॉन्क्रीटिंग। तो हमने अंडररिम्ड पाइल में यहाँ पे देखा था, तो इसमें क्या कहा था, बोरिंग के बाद सबसे पहले क्या करा था, रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराया था, रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराया था, उसके बाद कंक्रीट को प्रोवाइड कराया था। लेकिन बोर्ड कंपैक्शन पाइल में ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट केज को पहले प्रोवाइड नहीं कराएंगे कंक्रीटिंग को। रेनफोर्समेंट केज को कब प्रोवाइड कराएंगे, आफ्टर कंक्रीटिंग। आफ्टर द कंक्रीटिंग इज ओवर द रेनफोर्समेंट केज इज ड्राइवन थ्रू द फ्रेशली कंक्रीट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बोरिंग, उसके बाद में क्या करेंगे, कंक्रीट, और थर्ड वन कंक्रीट के बाद क्या करेंगे, हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज बाय 1.5 to 2 times ऑफ नॉर्मल अंडररिम्ड पाइल। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल्स की वो 1.5 से 2 गुना बढ़ गई इन कंपैरिजन ऑफ अंडररिम्ड पाइल फाउंडेशन। दिस पाइल इज सूटेबल इन लूज एंड सैंडी सॉइल एंड सिल्ट सॉइल। ये तो इसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ लूज टाइप की डेंस सॉइल सैंडी सॉइल हो। ऑल्सो यूज वेयर द लूज स्टार्टा ओवरलाइंग द डेंस स्टार्ट। लूज स्टार्टा ओवरलाइंग मतलब अगर नीचे की सतह डेंस है बट सॉइल की उस सतह के ऊपर कैसी है, लूज सॉइल है, और उसके ऊपर हमको स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे, बोर्ड कंपैक्शन पाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो यूज इन सबमर्ज सॉइल, जहाँ पे सॉइल और वाटर आपस में इन सबमर्ज कंडीशन में है, तो वहाँ पे भी हम बोर्ड कंपैक्शन पाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर सबसे पहले क्या होता है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्टली द बोर होल इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑगर। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑगर की हेल्प से हम एक्सकवेशन करेंगे, बोर होल को प्रिपेयर करेंगे। द सेकेंड वन इज द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड विदाउट रेनफोर्समेंट केज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंक्रीट है वो विदाउट रेनफोर्समेंट के हम उस बोर होल के अंदर प्लेस कर देंगे। आफ्टर कंक्रीट फिलिंग द रेनफोर्समेंट केज इनक्लोजिंग ए होलो ड्राइवन पाइप इज देन इंस्टॉल्ड। तो जब क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे बोर होल बना दिया, फिर इसके अंदर हमने कंक्रीट डाल दी। सेकंड स्टेप में क्या था, जो ये फ्रेशली कंक्रीट जो हमने बोर होल के अंदर डाली थी उसके अंदर हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एक पाइप को इंसर्ट कर रहे हैं, और पाइप कैसा है, होलो टाइप का पाइप है। थर्ड वन क्या होगा, एक कास्ट आयरन कॉनिकल शू विद द आयरन क्लीट वेल्डेड विद द रेनफोर्समेंट केज। तो अब जब हम रेनफोर्समेंट केज को इस पाइप के साथ में हम उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट केज प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, तो रेनफोर्समेंट केज होगा, उसके साथ में क्या होगा, एक कॉनिकल शू और एक आयरन क्लीट हो जो होगी वो क्या होगी, उसके साथ में वेल्ड होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनिकल शू एंड वेल्डेड क्लीट। दिस असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट केज इज ड्राइवन इन द कॉन्क्रीट बाय suitable weight of 500 kg operated with the help of mechanical machinery which to ensure vertical penetration in the cage। तो अब क्या करेंगे, अब जो ये कंक्रीट प्लेस हो गई, अब उसके अंदर हमको रेनफोर्समेंट को बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर प्लेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे या हैमर का इस्तेमाल करेंगे, जो उसका वेट अराउंड 500 kg का होगा, जिससे क्या हो, ये रेनफोर्समेंट केज है वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर प्लेस हो जाए इन द कंक्रीट। एज द केज इज ड्राइवन इनटू द कंक्रीट इट्स गेट कंपैक्टेड। तो जब ये केज क्या है, इसमें फिगर में आप देख सकते हैं, जब पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अपने कंक्रीट के अंदर प्लेस हो जाएगा, तो उसको हम कॉम्पैक्शन के लिए छोड़ देंगे। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ होल। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम रेनफोर्समेंट केज को बोर होल के अंदर सेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो होल है उसका, बोर होल है उसका क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज होगा। तो जो हम क्या करेंगे उसके बाद में
एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट इज पोर टू कीप इट इन लेवल विद द ग्राउंड। तो हम फिर क्या करेंगे, और एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट प्रोवाइड कराएंगे टू कीप इट इन टू द लेवल विद ग्राउंड। आफ्टर ड्राइविंग थ्रू फुल डेप्थ द कॉन्क्रीट इज फिल्ड एंड अ ड्राइव पाइप ऑल्सो एंड द पाइप इज देन ग्रेजुअली विदड्रॉन। तो जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो हम कुछ कॉन्क्रीट क्या होगी इस होलो ड्राइव पाइप के अंदर भी प्लेस करेंगे, और जिससे क्या हो पाइप को हम इजीली वापस बाहर निकाल सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हमने देखा जो पाइप है उसको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब ये आप देख सकते हैं ये बोरहोल है, उसके अंदर ये कंक्रीट प्लेस है और उसके अंदर ये रीइंफोर्समेंट है। अब हम इसको क्योर करने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये फाउंडेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। तो इसमें और अंडररिम्ड पाइल में एक ही डिफरेंस है, अंडररिम्ड पाइल में जो रीइंफोर्समेंट है वो पहले प्रोवाइड कराते हैं और कॉन्क्रीटिंग बाद में प्रोवाइड कराते हैं। वहीं बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल में क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग पहले प्रोवाइड कराते हैं और रीइंफोर्समेंट बाद में प्रोवाइड कराते हैं। ओके देन, थैंक यू।